ڈائریکٹر جنرل ISPR میجر جنرل بابر افتخار نے پریس کانفرنس کی جہاں انہوں نے فوج پر سیاست میں مداخلت کے الزامات کو رد کیا۔ یہ بھی سوال پوچھا گیا کہ اپوزیشن کی جماعتوں سے بیک چینل رابطے قائم کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، جس پر DG ISPR نے کچھ یوں کہا۔ جو سربراہ ہیں PDM کے مولانا فضل الرحمان، ان کا جو ایک بیان اور ایک اعلان سامنے آیا ہے جو نئی حکمت عملی ہے ان کی، اس حوالے سے کہ لانگ مارچ کا انہوں نے اناؤنس کیا ہوا ہے اسلام آباد حکومت وقت کے خلاف، لیکن انہوں نے دھمکی دی ہے کہ وہ پنڈی آئیں گے، GHQ کا اشارہ۔ مجھے اس کی کوئی وجہ نظر نہیں آتی پنڈی آنے، اور اگر فٹال وہ آنا چاہتے ہیں تو ہم انشاءاللہ ان کو چائے پانی پلائیں گے، اچھا ان کو لک آفٹر کریں گے، اس سے زیادہ میں کیا کہہ سکتا ہوں۔ باقاعدہ طور پر فوج کو سیاست میں گھسیٹا جا رہا ہے، فوج کو سلیکٹر کہا جا رہا ہے، فوج کو دھمکیاں دی جا رہی ہیں، ان کے حوالے سے مختلف قسم کی افواہیں پھیلائی جا رہی ہیں۔ جس قدر فوج کو عوام کے اندر اس کی ساکھ کو مجروح کیا جا سکتا ہے وہ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے بعض جماعتوں کی جانب سے۔ گزشتہ دنوں ہم نے یہ دیکھا کہ کوئی بیک ڈور کوششیں ہونے کی اطلاعات تھی کہ فوج بیک ڈور جو ہے وہ مفاہمت پیدا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، سیاسی جماعتوں سے رابطے ہوئے ہیں۔ تو یہ بتائیے گا کہ فوج اس میں کوئی کردار ادا کر رہی ہے، کوئی ہے رابطہ کسی سے کہ کوشش کی جائے کہ یہ سیاسی کشیدگی جو ہے اس کو روکا جا سکے؟ اس نوعیت کے الزامات لگائے جا رہے ہیں، ان کا جواب دینا ان میں کوئی وزن نہیں ہے، لیکن آل سیڈ اینڈ ڈن فوج حکومت کا ایک ذیلی ادارہ ہے، اور جو بھی بات چیت اس ضمن میں کی گئی ہے میرے خیال میں حکومت پاکستان نے اس کا بہت اچھے طریقے سے جواب بھی دیا ہے اور اس کو ٹیکل بھی کر رہی ہے۔ سو فوج کو سیاسی معاملات میں نہ آنے کی ضرورت ہے اور نہ ہی سیاسی معاملات میں گھسیٹنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ یہ سوال اس لیے کیا جا رہا ہے کہ حال ہی میں پاکستان مسلم لیگ فنکشنل کے سیکرٹری جنرل محمد علی دورانی نے پاکستان مسلم لیگ نون کے صدر شہباز شریف اور PDM کے صدر مولانا فضل الرحمان سے اہم ملاقاتیں کی ہیں۔ ملاقات کا مقصد ہے ٹریک ٹو ڈائیلاگ کا انعقاد کرنا، جس میں اپوزیشن سے بات چیت کے دروازے کھولے جا سکیں جو وزیر اعظم عمران خان نے بند کر رکھے ہیں۔ کئی تجزیہ نگاروں کا ماننا ہے کہ محمد علی دورانی کو متحرک کردار ادا کرنے کے لیے کہا جا رہا ہے، پر پاکستان تحریک انصاف کا کہنا ہے کہ دورانی صاحب یہ ملاقاتیں حکومت کے کہنے پر نہیں کر رہے۔ کیا محمد علی دورانی سرگرم ہوئے ہیں یا ان کو سرگرم کیا جا رہا ہے؟ یہ سوال اس لیے پوچھا جاتا ہے کیونکہ محمد علی دورانی ہمیشہ فوجی حکومتوں کے قریب رہے ہیں۔ انہوں نے IGI کو بنانے میں 1988 میں ایک اہم کردار ادا کیا، جنرل مشرف کے دور میں سینیٹر منتخب ہوئے اور 2006 میں 1 سال کے لیے وزیر اطلاعات کے عہدے پر فائز رہے۔ 24 دسمبر کو لاہور کے کوٹ لکھپت جیل میں ان کی ملاقات شہباز شریف سے ہوئی اور پھر مولانا فضل الرحمان سے 31 دسمبر کو۔ یہ چودھری نثار سے بھی مل چکے ہیں۔ کوٹ لکھپت جیل میں شہباز شریف سے ملاقات کے بعد ان کیاسا رائیوں نے جنم لیا کہ جیل کے دروازے طاقتور قوتوں کے کہنے پر ہی کھلتے ہیں۔ کیا پس پردہ کاوشیں جاری ہیں کہ اپوزیشن سے بات چیت کا معاملہ شروع کر کے ملک کو سیاسی عدم استحکام سے بچایا جا سکے اور اپوزیشن کی طرف سے احتجاج اور استعفوں کے معاملے کو روکا جا سکے؟ آئیے پوچھتے ہیں محمد علی دورانی سے جو اس کاوش کے مرکزی کردار ہیں۔ دورانی صاحب بہت بہت شکریہ، آپ نے ہمیں یہ انٹرویو دیا اور بڑے دیر بعد آپ ٹی وی سکرینز کے اوپر واپس آئے ہیں، مگر یو کم بیک ود بگ نیوز۔ جو آپ کی ایک طریقے سے جد و جہد رہی یا آپ نے جو کوششیں کی ہیں، کاوشیں آپ کی جو ہیں وہ رنگ لائیں گی، آپ کو امید ہے۔ آپ نے ٹریک ٹو ڈپلومیسی کی بات کی، مگر اپوزیشن نے ایکسٹریم پوزیشن لی ہوئی ہے اور وزیر اعظم عمران خان بھی ان سے بات کرنے کے لیے زیادہ آمادہ نظر نہیں آتے۔ ٹریک ٹو ڈپلومیسی شروع ہو گئی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، ٹریک ٹو ڈپلومیسی کا اس کی ہسٹری بتاتی ہے، آج بتاتی ہے کہ ٹریک ٹو ڈپلومیسی تو کبھی رکتی نہیں ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت جاری ہے، اس سے پہلے بھی جاری تھی۔ میں نے اس میں یہ ضرور کوشش کی ہے کہ اس کے اندر کچھ اس کو ایجنڈا سیٹنگ کی طرف لے جا سکوں۔ اور اس ٹریک ٹو ڈپلومیسی میں کون کون شامل ہے؟ دیکھیں، اس ٹریک ٹو ڈپلومیسی میں دیکھیں جی، میں نے اپوزیشن لیڈر سے بات کی کیونکہ ہی از دا کی پرسن، اور کوئی بھی پارلیمنٹری سسٹم کے اندر جس طرح لیڈر آف دا ہاؤس کی ایک امپورٹنس ہوتی ہے، اسی طرح لیڈر آف دا اپوزیشن کی ہوتی ہے، اور ڈائیلاگ کے لیے دونوں کا
चलना ज़रूरी होता है। उसके बाद मैंने जो लीडर ऑफ द पीडीएम थे उनसे भी मैंने मुलाकात की। इसके अब ये दूसरी पहली मुलाकात थी, वो तो छुप नहीं सकती थी चूंकि जेल में थी, दूसरी को हम जाहिर नहीं करना चाहते थे लेकिन वो आपकी वजह से जाहिर हो गई। इसके अलावा अगर कोई भी मुलाकात होगी, मेरी तो पूरी ख्वाहिश होगी कि वो खामोशी से हो और उसके अंदर रिजल्ट्स जो हैं वो बोलें, ना मुझे मीडिया में, आपको पता ही है मैंने अभी तक कोई भी अपने आप को ओवर एक्सपोज कभी भी नहीं किया, ना मुझे वो अच्छा लगता है कि किसी किस्म का कोई ऐसा एक्सपोजर हो जो गैर ज़रूरी हो। तो लिहाजा मैं ये समझता हूँ कि ये जो ट्रैक टू डिप्लोमेसी के ज़रिए एक एजेंडा सेटिंग का एक प्रोसेस जो हमने शुरू किया है ये चलता रहेगा और इसके नतीजे में होपफुली पाकिस्तान के इंटेलेक्चुअल्स इसके अंदर पार्टी बनेंगे, इसके अंदर जो है वो पाकिस्तान की स्टेट इसमें हिस्सा बनेगी। अच्छा, ये अपोजिशन हुकूमत, ये अहम बात आपने की कि पाकिस्तानी स्टेट इसके अंदर एक हिस्सा बनेगी। स्टेट से मुराद आपका क्या है? अगर ऑपोजिशन से ये लोग हैं तो दूसरी साइड से कौन? देखिए मैं आपको बताऊं, और जहां तक सवाल है स्टेट का, आपको पता है कि जी कोर्ट की तरफ से बड़ा क्लियरली कहा गया कि जी इस वक्त नेशनल एजेंडा सेटिंग के लिए आपस में बातचीत होनी चाहिए। वकला ने ये बात बहुत क्लियरली कही है। इवन एनडीयू के अंदर एक कॉन्फ्रेंस थी, उसमें एस्टैब्लिशमेंट की तरफ से भी ये बात आई कि जी इस वक्त इस चीज़ की ज़रूरत है कि इश्यूज़ के ऊपर डायलॉग हो। इसी तरह से मैंने पाकिस्तान के तमाम इंटेलेक्चुअल्स जो मैटर करते हैं उनसे मैंने फर्दन इसी अरसे में मुलाकातें की हैं। किन इंटेलेक्चुअल्स से? जो इंटेलेक्चुअल्स हैं आपकी तरह के और बड़े बड़े जो लोग हैं, नाम लेना, मैं नाम इसीलिए नहीं लेता ना, तो उनसे सबसे मैं जाके मिला हूँ। मैंने डिस्कस, थिंक टैंक्स हैं जो यहाँ पे, उनके जो बड़े हैं उनसे मैंने बात की है, सबने अग्री किया है। उन्होंने कहा कि इस वक्त ये जरूरत, पिछले 4-5 दिन तो मैं बहुत ज्यादा इस सिलसिले में एक्टिव रहा हूँ, उन्होंने कहा जी इस वक्त जरूरत इस चीज की है कि इस डायलॉग को आगे बढ़ाया जाए। पर्पस ऑफ द डायलॉग, पर्पस क्या है? पर्पस ये है कि जी एजेंडा सेटिंग की जाए फॉर अगले इलेक्शन के लिए, फॉर नेशनल डायलॉग। नेशनल डायलॉग किसके दरमियान होगा? हाँ जी, ग्रैंड डायलॉग जो होगा वो तो डेफिनेटली हुकूमत ऑपोजिशन के दरमियान ही होगा। और यानी कि पाकिस्तान तहरीके इंसाफ और ऑपोजिशन के दरमियान ये डायलॉग होगा, डायलॉग होना चाहिए। अच्छा दुरानी साहब, बात असल में ये है कि जो इस वक्त बड़ी पीडीएम की एक डिमांड है वो ये है कि मिलिट्री इंटरफेरेंस नहीं होनी चाहिए सियासत के अंदर। वो ये कहते हैं कि जो इलेक्शंस होने चाहिए उससे पाक होना चाहिए इलेक्शंस को, उसके अंदर रिगिंग नहीं होनी चाहिए और हमें ये गारंटी देनी चाहिए मिलिट्री को कि उसके अंदर वो अमल दखल नहीं करेंगे। जब वो ये कहते हैं और उसके अलावा वो और कुछ नहीं चाहते हैं तो आप उसको कैसे इंश्योर कर? देखिए मैंने तो जहां तक इलेक्शंस का ताल्लुक है, इलेक्शन दो इसके ऊपर मैं पॉइंट्स बताऊंगा। पहला तो जहां तक इलेक्शन का ताल्लुक है, देखें मुल्कों के अंदर एडमिनिस्ट्रेशन की इन्वॉल्वमेंट होती है, लोकल इंतजामिया की इन्वॉल्वमेंट होती है, इस्टेब्लिशमेंट की इन्वॉल्वमेंट होती है, बहुत से एजेंसीज की इन्वॉल्वमेंट होती है। इसका हल जो होता है मुल्क और कौमें जो हैं वो एक सिस्टम में से निकाला करती हैं। मैं आज अगर आप कहें जी पाकिस्तान में फेयर एंड फ्री इलेक्शन कराने का क्या तरीका है, मेरे पास एक सजेशन है। मैं कहूंगा जी कि अगर आप पाकिस्तान में रियल सेंस में फेयर एंड फ्री इलेक्शन चाहते हैं तो उसका तरीका यह है कि आप नेशनल इलेक्शन, प्रोविंशियल इलेक्शन और लोकल बॉडी इलेक्शन एक दिन कराएं, एक ही टैनर हो इनका। मैं देखता हूं कि लोकल बॉडीज के नुमाइंदे बैठे हों और उनकी होते हुए कोई धांधली करके दिखाए, नो वे। तो और ये होता भी है, ये भी नहीं है कि कभी नहीं हुआ, और मुल्कों में भी होता है। तो ये एक ऐसा सिस्टेमिक इंप्रूवमेंट होगी जिसके नतीजे के अंदर किसी की भी इंटरफेरेंस जो है वो मुश्किल और नामुमकिन होती जाएगी। तो ये मैं एस्टैब्लिशमेंट भी यही चाहती है। देखिए एस्टैब्लिशमेंट चाहती है नहीं चाहती, वो तो जो चाहते हैं आई डोंट थिंक कि कोई भी देखिए इसकी अपनी इसकी डेमोक्रेटिक स्ट्रेंथ इतनी है इस सजेशन की कि इसको कोई नो नहीं कह सकता। भाई मैं कह रहा हूं इसको नो इसलिए कह सकते हैं क्योंकि वो कहेंगे कि जी अगर आप एक दफा लोकल बॉडी इलेक्शंस भी आप एक ही दिन करा देंगे तो फिर जो सियासतदानों के पास एक निगोशिएशन की एक होती है विद एस्टैब्लिशमेंट दैट बी, वो भी फिर एक कमजोर पड़ जाती है। क्या उन्हें नेगोशिएशन मिलती? देखें जी लोकल बॉडीज इलेक्शन तो बेचारे आवाम का होता है, जो पार्ट ऑफ अपनी जो निगोशिएशन होती है सीटों की उसके लिए तो सियासतदान जगह रख लेते हैं। जहां पे आवाम ने आना होता है
वहां पे उन्हें निकाल देते हैं। तो मैं ये कह रहा हूं कि अवाम को अगर आप पॉलिटिकल सिस्टम में हिस्सादार बना देंगे तो वो अपने इलेक्शन का खुद हिफाजत कर लेंगे। सियासतदानों को भी इस चीज को समझना चाहिए, एस्टैब्लिशमेंट को भी। पाकिस्तान के अंदर सिंगल पार्टी सिस्टम आ सकता है? आपको लगता है कि शायद हम उस तरफ जा रहे हैं, या यहाँ पे कुछ ख्वाहिशात होती हैं? ख्वाहिशात ही हैं, मेरा ख्याल नहीं कि ना सिंगल पार्टी आ सकता है ना टू पार्टी आ सकता है। पाकिस्तान की जियोग्राफी जो है वो इस किस्म की किसी डेवलपमेंट को फिलहाल तो स्पेस देती हुई नजर नहीं आ रही। दुरानी साहब, वजीर आजम इमरान खान साहब और उनकी जितनी भी टीम है, उनसे जब पूछा जाता है आपके बारे में तो वो कहते हैं कि जी ये हमारे नुमाइंदे नहीं हैं, ये जो नेगोशिएट कर रहे हैं ये हमारी तरफ से नहीं कर रहे हैं। मुझे पता है, मैंने आपके सारे इंटरव्यूज देखे हैं कि आपने क्या कहा है। आप PMLF का एक अहम हिस्सा हैं और उनके लीडर के तौर के ऊपर आप पीर पगाड़ा की इंस्ट्रक्शंस के बाद आप ये बात करें। मगर मुझे ये बताइए कि जब आप बात करने जाते हैं तो वो आपसे ये भी तो कहते होंगे कि जी आपका अगर इन्फ्लुएंस नहीं है वजीर आजम इमरान खान साहब के ऊपर, तो फिर आप कैसे इंश्योर कर सकते हैं कि ये मामला तय पाएंगे? देखिए, मैं तो अपने मुल्क के लिए करता हूँ सब कुछ, अपनी आवाम के लिए करता हूँ, अपनी सेटिस्फेक्शन के लिए करता हूँ, अपनी पार्टी की डायरेक्शन पे करता हूँ। ठीक है ना जी। मेरा इस वक्त ये ख्याल है कि जो ही हमने डायलॉग की बात की है उसको जिस तरीके से रिस्पांस मिला है वो रिस्पांस मेरी वजह से नहीं था, वो रिस्पांस उस मैसेज की वजह से था जिस मैसेज को मैं प्रोपोगेट कर रहा था। मैं अगर डायलॉग की बात कर रहा था तो डायलॉग की बात के अंदर इतनी आवाम की ख्वाहिश शामिल थी कि उसके बाद बहुत से लोगों ने स्ट्रीट शोज किए हैं मुख्तलिफ चैनल्स ने, 80% लोगों ने कहा चाहिए। मगर फिर भी जब आपने शहबाज शरीफ साहब से कोट लखपत जेल के अंदर बात की तो उसके बाद मरियम नवाज साहिबा ने एक स्टेटमेंट दी, बल्कि 2 स्टेटमेंट्स दी, वो दोनों मैं आपको सुनाना चाहती हूँ। एक उन्होंने कहा कि जी देखिए वो NRO का पैगाम लेके आए थे कोट लखपत जेल के अंदर, और दूसरा उन्होंने ये कहा कि अगर डायलॉग होगा तो वो पसे पर्दा, जिस तरह आप ट्रैक टू डिप्लोमेसी की बात कर रहे हैं उस तरह डायलॉग नहीं होगा, अगर होगा अवाम के सामने होगा। उन्होंने क्या कहा ये आपको दिखाते हैं। फौज मेरा, लेकिन मैं बात जरूर हम करेंगे लेकिन आइन के दायरा कार में रह के, और वो बात अवाम के सामने होगी, छुप छुपा के कोई बात नहीं होगी, किसी से नहीं होगी। शहबाज शरीफ साहब से मिलने के लिए खानदान वालों को हफ्ता हफ्ता इजाजत लेनी पड़ती है, लेकिन इनका मैसेंजर जो NRO की भीख मांगने ये आते हैं तो इनके लिए जेलों के दरवाजे खोल दिए जाते हैं, इजाजत की भी जरूरत नहीं पड़ती। जी दुरानी साहब, देखिए जनाब, मैंने तो जो ही ये मुलाकात की इसके बाद मरियम बीबी का ये स्टेटमेंट आया था, उससे पहले मियां साहब का आया था, फिर उसके बाद मौलाना फजलुर रहमान साहब का आया था, तो मैंने इसके ऊपर एक ही स्टेटमेंट दी थी। मैंने कहा ये सारी स्टेटमेंट्स जो हैं ये इस चीज को इंडिकेट करती हैं कि डायलॉग शुरू हो गया, हर कोई अपनी कंडीशंस रख रहा है। ठीक है ना जी। अब आप मुझे बताएं, दुनिया में कभी कोई ऐसा डायलॉग होता है जिसमें दोनों तरफ पहले से राजी हो कि हाँ ठीक है जी जो कुछ है बस नहीं, मगर वो कहते हैं कि अगर डायलॉग होगा तो अवाम के सामने होगा, इससे इस तरह पसे पर्दा ट्रैक टू डायलॉग एस्टैब्लिशमेंट के साथ नहीं होगा। कितनी अच्छी कंडीशनैलिटी उन्होंने रखी है, मैं भी इसी के हक में हूँ। मैं ये कह रहा हूँ तो क्या होगा, एस्टैब्लिशमेंट जो ऑफिसर्स वोट लेते हैं कि हम सियासत में कभी हिस्सा नहीं लेंगे, वो टेबलों पे आएंगे और यहाँ पे पॉलिटिकल डायलॉग मैं उसमें अर्ज करते। देखिए जी, बात ये है कि इस वक्त जो चीज मैं कर रहा हूँ मैंने इसे ट्रैक टू डायलॉग कहा है, जिसको पब्लिक में लाना कोई कंपल्शन नहीं है, लेकिन दैट ट्रैक टू डायलॉग इज नॉट अ डायलॉग, दैट इज अ प्रैक्टिस फॉर एजेंडा सेटिंग, कि जिस चीज के ऊपर ऑपोजिशन और हुकूमत मिलकर बैठने के लिए तैयार हो जाएगी हम उस एजेंडा को वर्कआउट करना चाह रहे हैं। मैं तो बल्कि ऑपोजिशन वालों से भी कहता हूं, मैंने कहा आपने तहरीक शुरू की इतनी बड़ी, ठीक है ना जी, उसके लिए आपने उतनी भी एजेंडा सेटिंग नहीं की, उतनी भी तैयारी नहीं की जितनी हम एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए करते हैं। मतलब यह है कि कौमों को, पूरी कौम को आप एक स्ट्रेस की तरफ ले जा रहे हैं, एक उसकी तरफ ले जा रहे हैं, तो उससे पहले कोई प्लानिंग तो होनी चाहिए। मेरी हुकूमत से भी एक गिला है कि भाई आप जिस एहतसाब की बात करते हैं वो उस एहतसाब के हुए बगैर तो मुल्क ही नहीं चल सकते, क्या एक इदारा भी नहीं चल सकता। एहतसाब होना चाहिए, लेकिन एहतसाब क्या किसी को जेल में रखने का नाम है? एहतसाब उसको सजा देने का काम है।
एहतसाब करने का इसके अंदर हुकूमत का क्या कसूर? इसके अंदर तो नैब कोर्ट्स का कसूर है, इसके अंदर तो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर का कसूर है, इमरान खान साहब का इमरान खान साहब का सिर्फ इसमें से इतना कसूर है कि उन्हें इस इश्यू के ऊपर स्टेटमेंट देने का हक नहीं है कानूनी तौर पे। वो अगर एहतसाब चाहते हैं तो वो उसकी प्रोसिक्यूशन को फास्ट करें, वो उसके अंदर सजा दिलवाने के प्रोसेस को मतलब उसको फास्ट करने के अंदर दुरानी साहब वो कैसे कर सकते हैं? ये तो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर ही कर सकता है। उसको वजीर आजम इमरान खान साहब, मैं ऑपोजिशन में बैठा हूं, मेरा वकील जो है वो 4 करोड़ रुपए ले रहा है, आपने एक 25,000 का वकील रखा हुआ, तो वो कैसे आपस में एक दूसरे से फाइट करें? तो यानी इमरान खान साहब को जो प्रोसिक्यूटर रखना चाहिए नैब का, वो बेहतर रखना चाहिए ताकि कहीं नतीजा पहुंचे। देखिए, आप सिर्फ बयानात के जरिए किसी को एग्जीक्यूट कर रहे हैं, आप उसको जेल में रख के उसको एप्रीहेंड करके उसको लीडर बना रहे हैं, और बाद में अगर वो छुट के बाहर आ गया तो वो आपको भी खा जाएगा, हमें भी खा जाएगा दोबारा। बात यह है कि आप सजा दिलवाएं। ये कसूर वजीर आजम इमरान खान का है, क्योंकि उन्होंने नैब के प्रोसिक्यूटर्स सही नहीं रखे, उनमें कोई खास एबिलिटी नहीं है। ये तो हमारे सिस्टम, मैं तो आज से पिछले 10 साल से मैं स्टोलन एसेट की रिकवरी के लिए सुप्रीम कोर्ट में बैठा हुआ हूं, एक जगह पे गया हूं। मैं आपको गारंटी करके कहता हूं कि पाकिस्तान में कोई इदारा नहीं है जो ताकतवर मालदार को सजा दे सके। मेरी तो ख्वाहिश ही है कि चुप हो जाएं, बयान ना दें, सजा तो किसी एक को दिलवा दे, बयान दे के वो लीडर बन जाते हैं, आपकी एक दिन की सुर्खी बन जाती है, अवाम रुल जाते हैं। तो मैं इस वक्त निगोशिएशन के लिए डिमांड करते हुए भी मैं ये कहता हूं कि अगर आज आपने निगोशिएशन स्टार्ट करनी है और आप चाहते हैं कि रियल एहतसाब हो, तो जिन लोगों को आपने एप्रीहेंड किया हुआ है बिला वजह केसेस के अंदर, उनको छोड़ दें। तमाम शहबाज शरीफ साहब को बिला वजह एप्रीहेंड किया हुआ है, नहीं कह सकते। यानी शहबाज शरीफ साहब को आपकी नाकिस राय के अंदर रिहा करना चाहिए। मेरा ख्याल ये है कि जितने भी इस वक्त पॉलिटिशियंस हैं जो मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट है, मेरी सजेशन है उसके लिए नैब, कोर्ट और तमाम इदारों को मिलके एक कोड ऑफ कंडक्ट बनाना चाहिए कि जो लोग पार्लियामेंट में है उनको, ठीक है जी, अगर केस बन गया उनको आप ECL में डाल दें, वो बाहर ना जा सकें, मगर अरेस्ट नहीं कर सकते। अरेस्ट करने का फायदा कोई नहीं है। ऑलराइट, सो आप ये कह रहे हैं कि कोड ऑफ कंडक्ट ये होना चाहिए कि उनको अरेस्ट नहीं करना चाहिए जब तक उनके ऊपर के, जब तक उनको सजा, और इसकी वजह से हुकूमत पे प्रेशर होना चाहिए कि वो सजा दिलवाए। खाली मतलब इल्फाज से सजा देना, बेइज्जती करके दूसरे को वो करना, मतलब डिमीन करना, ये तो कोई एहतसाब नहीं। इस एहतसाब ने तो लीडर ही बनाए हैं और अब तक बन रहे हैं। मगर दुरानी साहब, यू हैव अ वेरी अपहिल टास्क, इसलिए चूंकि वजीर आजम इमरान खान साहब कहते हैं मैंने तो इनसे बात ही नहीं करनी, ये तो चोर है, इन्होंने मुल्क को तबाह कर दिया, और जो इस वक्त मुल्क की हालत है इन्होंने की, मैं इनसे बिल्कुल बात नहीं करूंगा जब तक कि ये करप्शन के ऊपर जो है ये अपना खमियाजा भुगतते नहीं है, तब तक मैं इनसे बात नहीं करूंगा। मैं तो समझता हूं कि खान साहब की ये बात जो है ये तकाजा करती है खान साहब से कि वो किसी को सजा दिलवाए। मतलब ये है कि ये बात करने का, ये NRO मांगते, अब देखिए ना, NRO को एक NRO हुआ, NRO को कोर्ट ने खत्म कर दिया। NRO ना कोई इस वक्त दे सकता है ना कोई ले सकता है। इस वक्त जो कुछ भी हो रहा है, अब मैं ये अगर ये कहूं कि आज के दौर में भी बाद लोगों को फेवर्स मिल जाती हैं, बाद लोगों को नहीं मिलती, ठीक है ना जी, तो मेरा ये काम नहीं है कि इस वक्त में इन इंटिक्रेसीज में इन्वॉल्व करूं अपने आप को, लेकिन मैं ये समझता हूं कि इस वक्त हुकूमत की एक जिम्मेदारी है कि वो एहतसाब के एजेंडे पे आई है। एहतसाब की सजा, एहतसाब सजा का नाम है, बयान का नाम नहीं है। सजा दिलवाना इस वक्त हुकूमत, अगर वो सजा नहीं दिलवा सकते तो उन्हें उस वक्त तक अपने ऊपर गुस्सा करना चाहिए। नहीं, मगर दुरानी साहब देखिए, हुकूमत एक तरफ, मगर ऑपोजिशन ने भी ये ऐलान कर दिया था कि जी हम रेजिग्नेशंस देंगे, अभी भी एक तरीके से वो एक खतरा तो है। उन्होंने कहा कि हम लॉन्ग मार्च करेंगे। आप तब उनके पास गए जब ये ऐलान कर चुके थे। एक तरफ से वजीर आजम इमरान खान और उनकी काबीना कहती है कोई खतरा नहीं, इन्होंने कोई रेजिग्नेशन नहीं देने। जब आप उनके पास गए, क्या आपको यकीन था या ये आपको कहीं से हिंट थी, अंदिया था कि ये रेजिग्नेशन जरूर देंगे? मेरे जाने का जो ख्वाहिश थी और इंटेंशन थी वो ये थी, पीर साहब ने जो मुझे टास्क दिया था उसकी भी ये एक वो थी कि जनाब इस्तीफे अगर हो जाते हैं, हाँ, तो उसके बाद भी तो डायलॉग होगा, लेकिन क्यों ना इस्तीफों से पहले डायलॉग कर लिया जाए।
ताकि एक नाकाबिले वापसी जो सूरत हाल पैदा हो जाएगी इस्तीफों के बाद जमहूरियत के लिए, वो इंतहाई खतरनाक हो सकती थी पॉलिटिकल प्रोसेस और डेमोक्रेसी के लिए। दूसरा एजेंडा ये खतरनाक से मुराद के मईशत तबाह हो जाती, मईशत तो पहले ही बहुत। अब देखें, ऑपोजिशन लीडर से मैं मिला, उन्होंने कहा जी कि बाकी तो जो मेरी पार्टी कहेगी वही मैं करूंगा, लेकिन एक मेरा कंसर्न है जिस पे आप इजहार कर सकते हैं। क्या? कि जी मुल्क की मईशत इस वक्त बहुत मौलाना फजलुर रहमान साहब से मैं मिला, उन्होंने कहा कि जी बाकी तो सब चीज़ों पे हम पार्टी के उसके मुताबिक चलेंगे, लेकिन हमारा ये ज़रूर हम समझते हैं कि जी इस वक्त मईशत जो है वो एक बहुत बड़ा चैलेंज है मुल्क के लिए। मैं भी यही समझता हूँ, पाकिस्तान का बच्चा बच्चा यही समझता है कि इस वक्त पाकिस्तान की मईशत जो है वो किसी किस्म की अनस्टेबिलिटी को अफोर्ड नहीं कर सकती। लेट मी ट्राई एंड अंडरस्टैंड, इस इशू के ऊपर शहबाज शरीफ साहब और मौलाना फजलुर रहमान साहब एक ही पेज के ऊपर, सारी अपोजिशन और मैं कहता हूं पूरा कौम एक पेज पे है कि इस वक्त मईशत की वजह से लोग परेशान। रेजिग्नेशंस के हवाले से आपकी बिलखुसूस क्या बात हुई शहबाज शरीफ साहब के साथ और मियां फजलुर रहमान साहब के साथ? तो मतलब उनकी अपनी एक राय है जिसका उन्होंने पब्लिकली इजहार भी कर दिया कि जो पार्टी हमारा फैसला होगा हम वही करेंगे, लेकिन मैं ये समझता हूं कि जो हमने ये एक डायलॉग किया रिगार्डिंग मैंने ये बात भी कही, मैंने कहा जी अगर ऑपोजिशन भी बात ना करना चाहती हो और हुकूमत भी बात ना करना चाहती हो तो अब तो बात की जरूरत और बढ़ जाती है, तब तो जरूरी होनी चाहिए। उन्होंने क्या कहा जब आपकी मीटिंग उनके साथ हुई? व्हाट काइंड ऑफ रिस्पांस डिड यू गेट फ्रॉम शहबाज शरीफ एंड मौलाना फजलुर रहमान सेपरेटली? फर्मली देखिए जी, जैसे शहबाज शरीफ साहब है, उन्होंने बहुत फर्मली ये कहा कि देखिए शहबाज शरीफ साहब की एक चीज को मैं पॉजिटिव समझता हूँ बहुत, कि जब कोरोना आया था, ठीक है ना जी, तो वो लंदन में रह सकते थे, लेकिन वो आखिरी फ्लाइट पे वापस आ गए थे। उन्होंने ही शोड हिज लीडरशिप। इसका कोई ताल्लुक उनके केसेस से नहीं है, मैं ये नहीं कह रहा कि उनके केसेस खत्म कर दें, भाई केसेस पे उनको सजा दें तो वो, और उन्होंने कहा होगा कि अगर सजा हो गई तो हमारा पूरा खानदान सियासत छोड़ जाएगा, मैं उसकी बात नहीं कर रहा, लेकिन अगर कोई लीडर लीडरशिप शो करता है तो उसको एक्नॉलेज तो करना चाहिए ना। मैं जेल में गया, उन्होंने कहा जी मुझे हमजा से भी नहीं मिलने देते, और हफ्ते में एक मुलाकात होती है, 2 हफ्तों से वो भी नहीं हुई। अब ये भी गैर जरूरी बात है, ठीक है। तो बातें ये हैं कि इस बातों के अलावा मैं ये समझता हूं कि तमाम पॉलिटिकल लीडर्स जो हैं उनको डायलॉग से नो नहीं कहना चाहिए, ठीक है जी, लेकिन फिर भी अपना एजेंडा तो वो रखेंगे ना। वो कहेंगे जी ये जाए तो फिर हम डायलॉग करेंगे, वो कहें जी ये यूं करें तो हम डायलॉग करेंगे। इस मामले में ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी गवर्नमेंट की होती है, ये तो हमें पता है ना, कि जी ऐसा एनेबलिंग एटमॉस्फेयर बनाया जाए जिसमें डायलॉग हो सके। और आज भी मैं ये समझता हूँ पार्लियामेंट अपनी फंक्शनिंग शुरू कर दे, हुकूमत जो है अपोजिशन को मिन्नत करके कुछ करके वापस पार्लियामेंट में ले आए, पार्लियामेंट को डायलॉग का इंस्टीट्यूशन बनाया जाए, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्शन अब जो इस वक्त पॉलिटिकल डेमोक्रेटिक सिस्टम की जो वैसे ये सब कुछ करेंगे वजीर आजम इमरान खान साहब? देखें जी हमारा काम तो है कहना और पब्लिक प्रेशर बनाना आपका काम है, और मैं समझता हूं कि मीडिया ने इस अरसे में बहुत बिल्डअप किया है और वो करता भी रहेगा। दुरानी साहब इधर मैं छोटा सा वक्फा लेती हूँ, मगर आपने एक और भी मुलाकात की है चौधरी निसार साहब के साथ, उसके बारे में मैं आपसे पूछूंगी। एक छोटे मोहम्मद अली दुरानी साहब, अब आपकी बड़ी मुलाकातें हुई, मौलाना फजलुर रहमान साहब से हुई, आपकी शहबाज शरीफ साहब से हुई, आप चाह रहे हैं कि जी ट्रैक टू डिप्लोमेसी शुरू हो जाए, और आपने ये इन्फॉर्मेशन और ख़बर दी कि ट्रैक टू डिप्लोमेसी अब शुरू हो गई है और ग्रैंड डायलॉग की तरफ जो है आपने एक एजेंडा फिट किया। आपकी मुलाकात चौधरी निसार से भी हुई। अब चौधरी निसार ना नेशनल असम्बली के अंदर है, ना पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का हिस्सा है, ना PDM का हिस्सा है, सिर्फ और सिर्फ वो एक MPA हैं पंजाब असम्बली के। क्या जरूरत पड़ी कि आप चौधरी निसार से मुलाकात करते हैं? मैं तो जो मुलाकात अगर ऐसी हो जिसको जो कि हुई हो या जिसको कोट करना हो मैं खुद कर देता हूँ, ठीक है ना। इस सारे मामले के अंदर मैं कोई सस्पिशन पैदा नहीं करना चाहता। मैं समझता हूँ कि ये एक मुकद्दस काम है, ठीक है ना जी, इस काम को होना चाहिए। सबसे ज्यादा मेरी मुलाकातें इस अरसे में जो हुई हैं वो इंटेलेक्चुअल से हुई हैं, ठीक है। मैं उनके भी नाम नहीं ले रहा, उनके नाम लेने से कोई फर्क नहीं पड़ता। नहीं देखिए चौधरी निसार तो एक ऐसे उसके बारे में तो मैंने बात ही नहीं की,
मगर क्या वो इस ग्रैंड डायलॉग का हिस्सा बनेंगे? वो बनेगा। देखें, जो बने हैं अब तक वो आपके सामने है, मजीद जो बनेंगे वो भी सामने आते जाएंगे। असल में होता ये है ना कि अगर कहीं जाने को, कहीं आने को, किसी मुलाकात होने को, किसी ना होने को खबर बना ली जाए, उससे पता क्या होता है, असल ऑब्जेक्टिव हट जाता है। मेरा मीडिया प्रोजेक्शन लेना या कवरेज लेना वो इस मकसद का हिस्सा नहीं है। कि इस वक्त जो हमें ज़रूरत है वो ये है कि हम एक एजेंडा सेट करने के लिए मेहनत करें जो आगे चल के किसी डायलॉग की बेस बन सके। मगर देखिए, जब आप कहते हैं कि जी डायलॉग की बेस बन सके, तो एक ट्रस्ट डेफिसिट होता है जिसको ख़त्म करना होता है। अब इसके अंदर मौलाना फजलुर रहमान साहब जो हैं, क्या सब उनको ट्रस्ट करते हैं? इसलिए चूंकि शेख रशीद साहब जो आपके पुराने कॉलीग रह चुके हैं, इंटीरियर मिनिस्टर, उन्होंने बयान दिया, उन्होंने कहा मौलाना फजलुर रहमान ऑपोजिशन में भी हैं और इस्टेब्लिशमेंट के साथ भी राब्ते रखते हैं। उनका तो बहुत अच्छा ताल्लुक रहा है इस्टेब्लिशमेंट के साथ, ये आप बेहतर जानते हैं। तो क्या ये तो नहीं होगा कि मौलाना फजलुर रहमान साहब इतनी एक्सट्रीम पे ले जाएं तमाम ऑपोजिशन को, और जब वो इस्तीफे दे के निकले तो मौलाना साहब पार्टी बदल लें? नाकदीन और इंटेलेक्चुअल्स जिनसे आप मिल रहे हैं वो भी इस तरह की बात करते हैं। देखिए, मौलाना का जहाँ तक ताल्लुक है, मौलाना एक थॉरो डेमोक्रेट हैं। वो मतलब ज़िया साहब के ज़माने में भी वो बेनज़ीर के साथ रहे हैं। उन्होंने पॉलिटिकल स्ट्रगल में कहीं कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं दिखाया। मैं जब नवाबुद्दीन रसूलुल्लाह खान साहब के कमरे में जाया करता था, वहाँ मौलाना फजलुर रहमान साहब की फ़ोटो लगी होती थी। तो मतलब ये है कि उनकी डेमोक्रेटिक सोच के ऊपर, हाँ, इस वक्त वो हर्ट ज़रूर है, ठीक है, थोड़े से। बल्कि मैंने तो उन्हें मिलने में कहा, मैंने कहा मौलाना आप कभी इमोशनल नहीं हुए, और आपका जो डेमोक्रेटिक पास्ट है वो आपसे इमोशंस को, आपके इमोशंस को अलाउ भी नहीं करता। तो उन्होंने इससे इख्तलाफ नहीं किया, उन्होंने इससे अग्री किया। बाकी मैं हुकूमत इमरान खान साहब के रेफरेंस से मैं ये जरूर कहना चाहूंगा कि खान साहब को अपनी पूरी टीम के जरिए इस्टेब्लिशमेंट को पॉलिटिकल प्रोसेस से अब आहिस्ता आहिस्ता उसको इन्वॉल्व नहीं करना चाहिए। क्या इस्टेब्लिशमेंट भी यही चाहती है? मेरा ख्याल है इस्टेब्लिशमेंट को ये चाहना चाहिए, और मैं ये समझता हूं कि ये एक वक्त की जरूरत है। और देखें ना जी, आप अब हमारे यहाँ क्या है कि हमारे यहाँ जो जिसके साथ इस्टेब्लिशमेंट हो उसको ताकतवर कंसिडर किया जाता है, ऐसे ही है ना। मैं समझता हूं कि अब ताकत जो है वो इस्टेब्लिशमेंट बेचारी के में से मजीद ताकत निकालने के बजाय उनको अपना काम करने दिया जाए। इतने थ्रेट्स हैं, इंटरनेशनल थ्रेट्स हैं। और मैं एक और बात आपको डायलॉग के सिलसिले में मैं एक बहुत तारीखी मतलब मैं इंपॉर्टेंट बात कहना शुरू कहते हैं कि पाकिस्तान इस वक्त दहशतगर्दी के अटैक के अंदर है। अगर आप इस वक्त कन्फ्रंटेशन को डाउन नहीं करेंगे तो दहशतगर्दी के बढ़ने के खतरा मौजूद है। दुरानी साहब, मौलाना फजलुर रहमान को भी आपने ये बातें जरूर कही होंगी। उन्होंने बाहर आके आपके साथ एक स्टेटमेंट दी। उन्होंने कहा कि हम वजीर आजम इमरान खान से कोई बात नहीं करेंगे, ये इस्तीफा दें, घर जाएं, इलेक्शंस का ऐलान हो तब बात करेंगे। ये कह रहे हैं वो ना, खान साहब भी यही कह रहे हैं। यकीन नहीं कर रहे, लेकिन कह रहे हैं। कहने देखिए, आप मुझे बताएं कब। अच्छा, कह रहे हैं और कर क्या रहे हैं ये बताएं ना, कर क्या रहे हैं? फिर कर ये रहे हैं कि वो पार्लियामेंट को बचा रहे हैं। कैसे? अभी इस्तीफों के सीन में पूरी ऑपोजिशन ने पार्लियामेंट को बचाया। देखें, पार्लियामेंट ऑपोजिशन के पास ये तो हक तो वो था। जो खतरा था वो टल गया इस्तीफों का? नहीं, टला तो नहीं है, लेकिन उसको टहल तो गया। कब तक के लिए? अगले किसी ऐसे इमोशनल मरहले के लिए। फिर आप फिर जाएंगे उनसे? नहीं, मैं तो लगा ही हुआ हूं। मैं समझता हूं कि इस वक्त दहशतगर्दी का अगर आपने मुकाबला करना है, हमारे जब दौर था उस वक्त जब कन्फ्रंटेशन ऑपोजिशन की और अदलिया का इशू चल रहा था, उस दौरान आउट ऑफ प्रोपोर्शन ग्रो किया था एक्सट्रीमिज्म ने। इस वक्त अगर आप चाहते हैं कि पाकिस्तान को दहशतगर्दी के आते हुए अटैक से बचाया जाए तो उसमें आपको डायलॉग का कोई ना कोई रास्ता जरूर निकालना चाहिए, और एक सूदिंग, कामिंग और रिस्पेक्टफुल एटमॉस्फेयर पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी का मुकाबला करने के लिए इस्टेब्लिशमेंट को भी और हुकूमत को भी और पूरी कौम को ज्यादा हौसला और हिम्मत देगा। आपने एक और स्टेटमेंट दी, आपने कहा कि जितनी भी पाकिस्तान मुस्लिम लीग्स हैं जिसके अंदर PMLN है, PMLQ है, PMLF है, इन सबको इकट्ठे कर देना चाहिए। और मैं बताना चाहता हूं कि जो अगला इलेक्शन होगा उसके अंदर सिर्फ
پرو پاکستان، پرو پیپل، پرو اسٹیبلشمنٹ جو جماعتیں ہیں ان کے لیے جگہ ہوگی. تو مجھے یہ بتائیے کہ اس کے اندر اگر اس نظریے سے دیکھا جائے تو آپ تو یہ بھی کہتے ہیں کہ پی ایم ایل این جو ہے وہ بھی حب الوطن نہیں ہے، پاکستان پیپلز پارٹی بھی نہیں ہے، جے یو آئی فے بھی نہیں ہے، اے این پی بھی نہیں ہے. میں نے کبھی نہیں کہا، میں تو ساروں کو نہ صرف حب الوطن کچھ انٹلیکچوئلز کہتے ہیں، میں تو ساروں کو کچھ حب الوطن اسٹیبلشمنٹ بھی کے لوگ سمجھتا سمجھتے ہوں. ہیں. نہیں دیکھیں، یہ بڑی زیادتی ہے. دیکھیں پیپلز پارٹی کو اگر حب الوطن نہیں ہے تو اتنے شہید ان کے بیچاروں کی لائن میں لگے پڑے ہیں. نون اگر حب الوطن نہیں ہے تو 3 دفعہ پرائم منسٹری ان کے گھر پڑی ہوئی ہے. اے این پی کے اوپر مقدمات چلا کے آپ نے دیکھ لیے. پھر پی ٹی ایم کا جہاں تک تعلق ہے وہ ایک پروسیس ہے، نئی ڈیولپمنٹ ہے، اس کو بھی اللہ تعالیٰ کوئی ان کو بھی اچھی پتہ کیا ہے. میں نے اجمل خٹک صاحب کو کابل میں بھی دیکھا ہے اور اسی اجمل خٹک کو میں نے پاکستان کے اندر پاکستان کی سیاست میں ایک مثبت رول ادا کرتے ہوئے بھی دیکھا. لہٰذا آپ غداری کے سرٹیفکیٹ باندھ کے ملک کو بانٹ کے آپ ملک کو کچھ نہیں لا سکتے. میں سمجھتا ہوں کہ مستقبل میں البتہ پرو پاکستان، پرو فیڈریشن جو مسلم لیگی ذہن ہے وہ سیاست کے اندر ایک بڑا بنیادی رول ادا کرے گا. ہمیں اب ڈیموکریٹک پولیٹیکل ڈیولپمنٹ کی ضرورت ہے. ہمیں ایسی پارٹی پی ایم ایل اس کے لیے تیار ہے، وہ تو اتنی طاقتور پارٹی ہے، وہ کیوں لے گی اپنے صفوں میں پی ایم ایل ایف کو؟ میرا تو دیکھیں میری خواہش پہ تو پابندی نہیں ہے. ہاں چلیں، خواہشات ہو سکتی ہیں اور مجھے نظر بھی آ رہا ہو اگر کچھ ٹھیک ہے جی. ماضی میں بہت طاقتور پارٹیاں بہت کمزور بھی ہوئی ہیں اور بہت کمزور پارٹی. میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت پبلک سینٹیمنٹ جو ہے وہ چاہتا ہے کہ لیڈرز جو ہیں وہ پرو پاکستان رہیں. وہ چاہتا ہے کہ لیڈرز آپس میں لڑنے کے بجائے پبلک انٹرسٹ کے لیے کچھ کریں. وہ چاہتا ہے کہ اکاؤنٹیبلٹی ہو جو کہ پیسہ لوٹا ہوا واپس لائے. ایسی اکاؤنٹیبلٹی نہیں جو لوگوں کو لیڈر بنائے. آپ زیرک سیاستدان ہیں، بڑے عرصے سے آپ سیاست کرتے رہے، آپ بہت کچھ دیکھ بھی سکتے ہیں، سیاستدان دیکھ سکتے ہیں. کیا وزیر اعظم عمران خان صاحب اپنی ٹرم پوری کریں گے اگر معاملات اسی طرح چلتے رہے؟ یہ ٹرم خان صاحب کے اپنے ہاتھ میں ہے. معنی یہ ہے کہ پورا کرنا بھی ان کے ہاتھ میں ہے اور نہ کرنا بھی ان کے ہاتھ میں. نہ کرنے میں اگر معاملات اس طرح چلتے رہے تو کانسٹیٹیوشنلی تو ان کے پاس پورا رائٹ ہے کہ وہ پورا کریں. اب جو ان کے راستے میں سب سے بڑی رکاوٹ ہے وہ ملک کی اکانومی ہے. اگر اکانومی اسی طرح ڈاؤن سلائڈ پہ رہتی ہے، اگر مہنگائی اگر یہ ٹرینڈ رہتا ہے تو پھر کسی کو کچھ کہنے کی ضرورت نہیں پڑتی. آپ خود اپنے آپ کو اتنا ویک کر لیتے ہیں کہ اس کے منفی نتائج جو ہیں وہ پبلک ری ایکشن کی صورت میں اور ایک ڈیموکریٹک ڈیمانڈ کی صورت میں سامنے آنا شروع ہو جاتے ہیں. تو یعنی تب ٹرم پورا کرنا مشکل ہو جائے گا. اگر دیکھیں جی، میں نے یہ کہا کہ یہ ٹوٹلی خان صاحب کے اپنے اختیار میں ہے. انہیں یہ ٹرم دے دی ہے پارلیمنٹ نے. اب اگر وہ اس ٹرم کو پارلیمنٹ ملک کے آئین اور قانون کے مطابق اور ملک کے مفاد اور عوام کے مفاد کے لیے، اگر روز ہی بجلی نے بڑھتے جانا ہے، اگر روز ہی گیس نے مہنگے ہوتے جانا ہے، اگر روز ہی چینی چوروں نے ملک کے حکمران بنتے جانا ہے، تو یعنی پھر ارلی الیکشنز ہو سکتے تو اگر یہ سب اب کے لیے الیکشن بھی پرابلم ہوں گے اور حکومت بھی پرابلم ہوگی. اچھا، مگر تو اگر وہ اکانومی ٹھیک کر لیں اور پھر بھی اپوزیشن سے بات نہ کریں تو تب بھی تو معاملہ چل سکتا ہے. دیکھیں جی، اگر اکانومی ٹھیک کر لیتے ہیں اور اس کے بینیفٹس جو ہیں وہ پبلک کو ٹرانسفر ہونا شروع ہو جاتے ہیں تو پھر اپوزیشن کی جو سے ہوگی وہ ویک ہو جائے گی. ٹھیک. So it all depends on the economy. Thank you so much, Durrani Saab, for your time, for the interview. تو ناظرین